Hello everyone. In this video students, I am going to start second chapter relations and functions. First of all students, we will understand what is relations. In daily life students, we come across many relations such as teachers and students, mother and daughter, book and cost. Similarly, in mathematics students, we come across many relations such as number 1, x is a square of y. Second example, line L is perpendicular to line M. Third example, a set A is proper subset of B. For these students, we will understand what is ordered pair. Students, ordered pair is a pair of object taken in a specific order. Ordered pair. Ordered pair is a pair of objects taken in a specific order, like A comma B. First number A is said to be first component. And second number B is said to be second component of ordered pair. Students, if you have ordered pair 2 and 5, ये देखो ordered pair इसको बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इस नंबर में जो ordered pair है, इसमें जो नंबर्स के पोजीशन है वो फिक्स है. जैसे 2 जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और 5 जो है सेकेंड पोजीशन पे है. तो देयरफॉर 2 is the first component of given ordered pair and 5 is the second component of the ordered pair. Right? Now we will study equality of ordered pairs. Equality of ordered pairs. Let two ordered pair A comma B and C comma D are called equal if A comma B equal to C comma D, if and only if A equal to C and B equal to D. Students, here you have two ordered pair A B and C D. अब इसको हम इक्वल कब बोलेंगे? जब हम A कॉमा B इक्वल टू C कॉमा D को लिखेंगे. और ये अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट and second component equal to second component लिखेंगे. Right? We take example students. If two ordered pairs x minus 2 y plus 1 and 4 2y plus 3 are equal, then find the value of x and y. Students, from definition of equality we can written as x minus 2 y plus 1 equal to 4 comma 2y plus 3. Therefore students, first component equal to first component, x minus 2 equal to 4, x equal to 6,
and second component of first ordered pair equal to second component of second ordered pair. Y plus 1 equal to 2y plus 3 or y minus 2y equal to 3 minus 1 or minus y equal to 2 or y equal to minus 2. So therefore the value of x equal to 6 and y equal to minus 2. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे तो उसके फर्स्ट कंपोनेंट को आपस में इक्वल कर देंगे एंड सेकेंड को आपस में इक्वल कर देंगे, जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगी, राइट। नाउ वी विल स्टडी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets. Cartesian product of two sets. Let A and B are two non-empty sets. The set of all ordered pairs of AB for all A be the element of A and B be the element of B is called Cartesian product of A and B. It is denoted by A cross B. Symbolically, students, we can written as A cross B equal to AB such that A be the element of A and B be the element of B. Similarly, students, we can written as B cross A equal to BA such that B be the element of B and A be the element of A. For example, let A equal to 1, 2, 3, 5 and B equal to 2, 4. Find A cross B. What is the value of A cross B? A cross B equal to, A cross B is a Cartesian product of AB. It is the set of all ordered pair, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी के पॉसिबल हैं वे सबके सेट को हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी। तो कर्ली ब्रैकेट में देखो फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर पहले बनाते हैं। देखो 1 2, 1 का देखो 2, फिर 1 4, 1 का देखो 4, फिर 2 2, फिर 2 4, 3 2, 3 4, 5 2, 5 4। देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल थे, ठीक है, सबके कलेक्शन को ही हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहेंगे। अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, बी क्रॉस ए, तब क्या हो जाएगा, अब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम इसके एलिमेंट को लेंगे एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम इस सेट के एलिमेंट को लेंगे। तो जैसे देखो 2 1, 2 2, 2 3,
2 5 4 1 4 2 4 3 4 5, राइट। अब आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बोथ में सेम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी? इसके लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट, नोट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब आप जैसे देखो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना 1 2 3 4, यहां 4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 हो गया, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हम कैसे भी गिवन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ इंटीजर -1 less than or equal to x less than or equal to 1, and set C equal to 1 comma 2. Verify that first relation A cross B union C equal to A cross B union A cross C, and second A minus B cross C equal to A cross C minus B cross C. Solution: given A equal to x such that x be the element of natural number and x less than or equal to 3. In roster form students, x be the element of natural number and less than or equal to 3. So therefore elements are 1 2 and 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 के इक्वल और उससे लेस है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ऑल काउंटेबल नंबर आर सेड टू बी natural number 1 2 3, and b equal to x such that x be the element of integer -1 less than or equal to x less than or equal to 1. In roster form students, -1 0 and 1, and c equal to 1 comma 2. ये गिवन सेट्स हो गए। अब देखो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग जो ब्रैकेट में नंबर होता है उसको हम फाइंड करते हैं। तो जैसे देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, द वैल्यू ऑफ बी -1 0 1 एंड सी 1 2, तो यूनियन ऑफ बी एंड सी क्या हो जाएगा? -1 0 1 एंड 2, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे बट हमें रिपीट नहीं करना है। अब देखो ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। नाउ ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू, हियर ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी यूनियन सी इक्वल टू -1 0 1 2. Therefore Cartesian product of both sets 1 -1 1 0 1 1 1 2, देखो फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, कॉमा 2 -1 2 0 2 1 2 2 with respect to 3 3 -1 3 0 3 1 3 2, ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इक्वल टू 1 2 3,
क्रॉस b इक्वल टू -1 0 1 इक्वल टू 1 -1 1 0 1 1 2 -1 2 0 2 2 -1 2 0 2 1 3 -1 3 0 3 1 and a cross c equal to a cross c a equal to 1 2 3 cross c equal to 1 2 equal to 1 1 1 2 and 2 1 2 2 3 1 3 2 ठीक है। नाउ a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लिखना है बट हमें रिपीट नहीं करना है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। -1 1 1 0 1 1 2 -1 2 0 2 1 3 -1 3 0 3 1। अब देखो क्या छूट रहा है हमारा, 1 1 हो चुका, 1 2 कहीं है, 1 2 कहीं नहीं है तो इसको लिख लो 1 2 2 1 ऑलरेडी है, 2 2 देखो कहीं नहीं है तो इसको भी लिख लो 2 2। फिर देखो 3 1 है, 3 2 3 2 है नहीं, 3 2। तब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B यूनियन C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए और एलिमेंट्स भी सेम है। जो एलिमेंट A क्रॉस B यूनियन C के हैं वही एलिमेंट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get A cross B union C equal to A cross B union A cross C। तो इस तरह से हम लोग जो है फर्स्ट रिलेशन को फाइंड कर लिए। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, A minus B, A minus B, A equal to 1 2 3 minus B equal to -1 0 1। अब इसमें स्टूडेंट्स A का वो एलिमेंट होगा जो B में ना हो। तो देखो 1 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, तो A minus B equal to 2 and 3। नाउ A minus B cross C equal to A minus B equal to 2 3 cross C equal to 1 2। That is equal to students 2 1 2 2 3 1 3 2। Equation number 1 and A cross C equal to A equal to 1 2 3 C equal to 1 2 equal to 1 1
1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। B क्रॉस C इक्वल टू -1 0 1 क्रॉस C इक्वल टू 1 2। Therefore Cartesian product -1 1 -1 2 0 1 0 2 1 1 1 2, right? Therefore A cross C माइनस B क्रॉस C इक्वल टू, अब देखो A क्रॉस C का वो एलिमेंट जो B में ना हो, तो देखो 1 1 है, इसको नहीं लिखना है, 1 2 भी है, 2 1, देखो 2 1 कहीं नहीं है, 2 1, 2 2 2 2 भी नहीं है, 3 1 नहीं है, 3 2 ये भी नहीं है, ठीक है। ये टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को देखो सेम है, देखो 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 2 है। देखो A माइनस B क्रॉस C के जो भी एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वही A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C के हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 we have A minus B cross C equal to A cross C minus B cross C, proved.